Hi everyone, welcome to the channel Simple Concepts. I'm Rashmita and I'm back with another lecture. In this lecture, we are going to talk about the most important revolt of the whole of the modern history, that is revolt of 1857. इस revolt के बाद ब्रिटिश एम्पायर पूरा हिल गया था और पूरा सिनारियो ही इंडिया में चेंज हो गया था ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. सो वी हैव इन आर प्रीवियस वीडियोस डिस्कस्ड के 1857 से पहले क्या क्या थोड़े सिविल राइजिंग्स हुए थे और क्या क्या ट्राइबल मूवमेंट्स थे जो अलग अलग एरियाज में डेवलप हो रहे थे एंड व्हाट वाज द एक्चुअल कॉज ऑफ डिसेंट के लोगों को क्या परेशानियां हो रही थी जिसकी वजह से थोड़े थोड़ी जगह में अलग अलग रिवोल्ट्स हो रहे थे. तो इस लेक्चर में हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे फ्रॉम इट्स कॉजेस टू इट्स सिग्निफिकेंस एंड आफ्टर कॉजेस आफ्टर मैथ्स ऑफ द वॉर. Okay, so if you want to see my previous lectures, so you can go to our channel Simple Concepts. सारे lectures वहाँ पे available है जितना भी मैंने अभी तक history का syllabus cover किया है. Also, if you want PDF of these lectures, you can join our Telegram group. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. नहीं तो आप अपने टेलीग्राम पे जाके भी अगर सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी सर्च करेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा. So let's begin. Okay, so before coming to the topic, there are 3 dynamic batches for complete preparation that is going to start from 29th June on Unacademy for your UPSC CSE preparation for 2020 and 2021. These are the 3 batches. So first one is Mission UPSC CSE 2021. Second one is Lakshya UPSC CSE 2021 and the third one is एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021. तो जो पहला वाला बैच है ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में इसमें जीएस पढ़ाया जाएगा, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी. दूसरे वाले में आपको हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और तीसरे वाले में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में जीएस पढ़ाया जाएगा. तो आपको इन सब कोर्सेज में क्या क्या मिलने वाला है? सो यू विल गेट द फुल सिलेबस कवरेज फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. Second is prelims and mains test series with analysis. Third that you will be getting is dedicated doubt clearing sessions and also interview preparations. So you can join any of the 3 courses with which language you are comfortable with. Okay, if you have any doubts so you can also ask us कि कौन सा ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए. Also, if you use our code SIMPLEYT तो आपको extra 10% discount मिलेगा. For example, if you buy the whole package of 24 months, so the amount that you have to pay is rupees 64,000. But if you use our code SIMPLEYT, then you will have to pay only 57,600. Similarly, if you buy the package for 12 months, then you have to pay rupees 44,000. But if you use our code, then you have to pay only 39,600. So you can see what a great deal this is. So do not forget this code SIMPLEYT. Also you can contact on this number. Okay, this on this number we will particularly help you with के कौन सा आपको course join करना चाहिए. Also if you want any guidance from us on Unacademy, if you want to get lectures under us on Unacademy, or you have any doubt regarding why to choose plus, what are the advantages of it, and whole other thing like everything that you want to know about Unacademy or any of the courses that I have mentioned, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. द नंबर इज 9689638048. You can WhatsApp us or you can call us on this number. So with this, let us get started with the lesson. So first of all, we will study about the major causes of the revolt of 1857. कि क्या क्या actual causes थे जिनकी वजह से एक revolt खड़ा हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ. So the main points are economic cause, political causes, administrative causes, socio-religious causes, discontent among sepoys. So now we will understand each and every factor in a very detailed manner. So economic cause में क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ द हाई रेवेन्यू सिस्टम. ओके, जो अंग्रेज इतना ज़्यादा जो पीजेंट्स के ऊपर रेवेन्यू सिस्टम लगा रहे थे, ऑल्सो
जब फेमाइन आती थी, तब भी वो लोग अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो रेट है उसको लोअर नहीं करते थे। उस वजह से क्या था कि जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था रेवेन्यू पे करने का। अब जब फेमाइन की वजह से उनकी क्रॉप ही नहीं जनरेट हुई, सो हाउ विल दे बी एबल टू पे द हाई रेवेन्यू टैक्सेस ऑफ इंग्लिश। तो उस वजह से क्या होता था कि वो लोग जो पैसा है जो उनको रेवेन्यू में देना है, तो वो पैसा मनी लेंडर्स से बोरो करते थे, और जो मनी लेंडर्स थे वो पैसा देने के लिए बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो उस वजह से क्या था कि ना तो वो लोग पूरी तरीके से अपना रेवेन्यू दे पा रहे थे, और ना ही वो मनी लेंडर्स को इंटरेस्ट पे कर पा रहे थे जो उन्होंने पैसा लिया है। तो उस वजह से जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट थे, बेसिकली मतलब जितने भी पेजेंट्स थे, वो एक तरीके से ट्रैप हो गए थे। उन्हें इधर भी पैसा देना था, उन्हें उधर भी पैसा देना था, लेकिन वो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गए थे। एंड द इंग्लिश गवर्नमेंट वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग टू रिलीज देयर प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ दिस उनकी जो बेसिकली जो बर्डन है वो बढ़ता ही चला गया एक के बाद एक। जैसे उस टाइम पे बहुत सारी फेमाइंस आई, एंड द इंग्लिश गवर्नमेंट नॉट डूइंग एनीथिंग कि उनसे भी बचा जा सके, फेमाइन से भी बचा जा सके, और साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेट हो। ऑल्सो देर वर नो पॉलिसीज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर के आप एग्रीकल्चर के लिए कोई ऐसी पॉलिसी निकालो कि बहुत ज़्यादा जो पेजेंट्स हैं वो एनकरेज हो। तो उस वजह से क्या होता था, बिकॉज वो इतना डेट में आ जाते थे, तो मनी लेंडर्स जो हैं या ट्रेडर्स जो हैं वो उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। ठीक है, वो उनको ज़मीन देनी पड़ती थी और वो लैंडलेस हो जाते थे। सो दिस इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअली लास्टेड फॉर ईयर्स, जिसकी वजह से जो पेजेंट्स थे वो बर्डन में दबते ही चले गए और कभी उभर ही नहीं पाए उस बर्डन से। ऑल्सो डिस्करेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थी इंडिया में, ब्रिटिशर्स ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लेके आई उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। ऑल्सो जितने भी रूलर्स थे या नवाब्स थे जो मतलब बेसिकली हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को सपोर्ट करते थे, उनका जो सामान था वो खरीदते थे, अब उनको साइड लाइन कर दिया गया था। उनके पास वो पावर नहीं थी, उतनी वेल्थ नहीं थी कि वो ये सब चीज़ें खरीद पाए, जिस वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इट वॉज नॉट फ्लरिशिंग। ऑल्सो जो ब्रिटिशर्स थे दे वर इनकरेजिंग पीपल टू बाय ब्रिटेन गुड्स इंस्टेड ऑफ इंडियन मेड थिंग्स। तो इस वजह से भी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होती चली गई, और जितने भी क्राफ्ट्समैन थे उनको कोई और ऑक्यूपेशन ज्वाइन करना पड़ा, लाइक एग्रीकल्चर। थर्ड रीजन वॉज कन्फिस्केशन ऑफ लैंड ऑफ जमींदार। सो जो जमींदार थे उनके लैंड ले लिए गए थे बाय समनिंग देम बाय डिफरेंट वेज, उनके लैंड छीन लिए जाते थे और उनको साइडलाइन कर दिया गया, जिस वजह से उनका भी जो ग्रोथ था वो बहुत नीचे चला गया था। एंड बिकॉज वो अपने टाइम में एक बहुत हाई पोजीशन पे रह चुके थे, सो दे डिड नॉट हैव एनी अदर वे ऑफ इनकम। ऑल्सो दे वर शाय टू बेग कि वो पैसा नहीं मांग सकते थे किसी से बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन। सो वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन में जाते चले गए, और इस तरीके से जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो गई। हर कोई एग्रीकल्चर में जाना चाहता था, और एग्रीकल्चर लैंड इतना था ही नहीं कि वो इतने लोगों को एकोमोडेट कर पाए। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक सिस्टम था इंडिया का वो खराब होता चला गया। सेकेंड वॉज पॉलिटिकल इशू। सो पॉलिटिकल इशू में क्या क्या हुआ, दे मेड फॉल्स प्रोमिसेस, डिनायल ऑफ सक्सेशन टू हिंदू प्रिंसेस। सो एज वी ऑल नो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा फॉल्स प्रोमिसेस करते थे, दे यूज टू से समथिंग एंड यूज टू डू समथिंग एल्स। तो उन्होंने बहुत सारे रूलर्स के साथ बहुत सारे प्रोमिसेस किए लेकिन उनको पूरा नहीं किया। ठीक है, जैसे वो प्रॉमिस करते थे कि हम आपकी साइड से लड़ेंगे, बट लास्ट मोमेंट पे वो अपना दल बदल लेते थे, जिस वजह से जो इंडियन प्रिंसेस थे या इंडियन रूलर्स जो थे उन्होंने अंग्रेजों पे विश्वास करना बंद कर दिया था। ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर सो मच ऑफ रूलिंग पॉलिसीज, वो जो पॉलिसीज लेके आते थे लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस एंड वेरियस अदर डॉक्ट्रिन्स, सो उन सब चीज़ों की वजह से जो एक ट्रस्ट था ना ये ब्रिटिशर्स के ऊपर वो ख़त्म होता जा रहा था इंडियन रूलर्स का। सो देयर वाज लाइक अ पॉलिटिकल डिस्ट्रेस गोइंग ऑन इन द कंट्री के दोनों के बीच में क्लैश ही चलता रहता था, बिकॉज ऑफ विच कोई लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे उतना ध्यान ही नहीं दे पाता था। ऑल्सो
the Britishers used to deny the succession of Hindu princes कि जो एक्चुअली रूलर होना चाहिए नेक्स्ट वो उसको डिनाई कर देते थे उसका सक्सेशन और वो अपना कोई पपेट रूलर जो है उसको गद्दी पे बिठा देते थे जिसकी वजह से ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलता था बस पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती थी और दोनों में से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे ध्यान ही नहीं देता था लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान ही नहीं देता था जिसकी वजह से जो इंडिया की कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी. So the third issue was the administrative issue. So the administrative causes that actually led to the revolt of 1857 was कि इस टाइम में जो ब्रिटिशर्स का पीक टाइम था जब 1857 से पहले तो इंडिया में करप्शन बहुत बढ़ गया था. ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ये बहुत ज़्यादा करप्शन करने लगे थे. लाइक आई हैव ऑल्सो मैंशनड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ कि लोग दस्तक को एज अ लाइक रेंट पे देते थे एंड दे यूज टू कलेक्ट मनी. सो देयर वर अ लॉट ऑफ करप्शन गोइंग ऑन. ये लोग दूसरे रूलर्स को पैसा भी देते थे in order to get the land from them. So there were a lot of corruption. Also modern historians believe that जो इंडिया में corruption actually आया है वो अंग्रेजों की ही देन है. उन्हीं की वजह से इंडिया में अभी भी corruption prevalent है. The another cause was socio-religious causes. So as you all know कि जो Britishers थे वो religious matters में भी interfere करने लगे थे इंडिया के. Like let's take an example कि जितने भी social evils थे like सती एंड विडो रीमैरिज ये सब वो लोग करवा रहे थे कि सती को अबॉलिश करा दिया था बैन करवा दिया था और जो विडो रीमैरिज था उसको वो लोग थोड़ा इनकरेज कर रहे थे ये सब था. तो इसको जो इंडिया के लोग थे दे वर एक्चुअली सीइंग दिस एज एन इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर्स एंड कस्टम्स. ऑल्सो दिस वॉज एग्जैजरेटेड जब ब्रिटिशर्स ने मॉस्क और टेम्पल लैंड्स को बेसिकली टैक्स करना शुरू किया. वो उनके ऊपर उन लैंड्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने लगे थे. सो दिस ऑल वॉज एक्चुअली सीन एज द इंटरफेरेंस ऑफ इंग्लिश इन सोशियो रिलीजियस causes of Indian people. So because of this, like among the large group of people, a kind of dissent grew. The next reason is discontent among sepoys. So there were like many reasons of the discontent among sepoys. One of them were that the English used to interfere in their religious matters. Okay, like they were not allowed to wear their religious identities while they serve for the army. Okay, so all of this happened and certain other things were happening among the sepoys के जैसे there was a kind of discrimination. Like the English officials or the English troops were actually considered higher than the Indian troops. उनको equal treatment नहीं मिलता था. Also उस टाइम में क्या था उस टाइम में ये माना जाता था because there was caste system prevalent in India. तो अगर कोई इंसान नदी क्रॉस करता है ठीक है दरिया क्रॉस करता है तो बेसिकली उसने अपनी कास्ट खो दी है ऐसा माना जाता था. एंड जब इनको बटालियन में भर्ती किया जाता था अलग अलग तो उनको कहीं कहीं दूर दूर भेजा जाता था. तो दिस वॉज एक्चुअली सीन एज द इंटरफेरेंस अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन देयर रिलीजियस मैटर्स. एंड जो सिपॉयज थे वो उनको ये लगने लगा था कि जो इंग्लिश हैं वो इनके सेंटिमेंट्स को जो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं या इनके कस्टम्स हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ऑल्सो देयर वॉज अ इंसिडेंट जब ये बोला गया था कि whoever सर्व इन पंजाब और सिंध एरिया तो उसको फॉरेन अलाउंस मतलब भत्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा. सो देयर वाज दिस इशू ऑल्सो विच एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट अमंग सिपॉयज. ऑल्सो इफ यू नो कि उस टाइम पे जो ये बीफ और ये सब था दिस वॉज एक्चुअली जो लोग थे वो ये सब प्रेफर नहीं करते थे. इट वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड एज होली. ठीक है तो जो उस टाइम के राइफल्स थे उनमें ये ऐसा न्यूज़ आई थी उड़ते हुए कि उसमें जानवरों की हड्डियों का पाउडर यूज़ किया जाता है. सो दिस एक्चुअली क्रिएटेड अ काइंड ऑफ फायर अमंग द सिपॉयज कि उन्होंने एक पूरा का पूरा जो ये सिपॉय म्यूटनी था इसको अंजाम दिया. नाउ वी विल सी द बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट कि कहाँ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. सो द स्पार्क एक्चुअली हैपेंड इन रिपोर्ट ऑफ मिक्सिंग बोन्स डस्ट इन आटा
and introduction of Enfield rifle created a disaffection towards government. As I already told you कि there were reports कि जो bones है, जो जानवरों की bones है, उनको आटा में mix किया जा रहा है, जो कि इन सिपॉइज को दिया जाता था. ऑल्सो जो इनफील्ड राइफल थी उस टाइम की, उसमें गाय या भैंस की चर्बी से उसको कोट किया गया है. ऐसे भी रूमर्स थे जिसकी वजह से जो सिपॉइज थे उनके मन में एक डिसअफेक्शन आ गया था गवर्नमेंट को लेके. ओके, सो दिस रिवोल्ट एक्चुअली बिगैन फ्रॉम मेरठ ऑन May 10, 1857. सो दिस ये जो पूरा रिवोल्ट एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन May 10, 1857. But before Meerut, there was various resentment in various cantonment areas like Behrampur. So Bengal में this is a area called Behrampur. तो वहाँ पे भी there was a kind of discontent. Okay, मतलब मेरठ से तो ऑफिशियली ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, बट उससे पहले भी जगह जगह पे कई सारे कैंटोनमेंट्स में ये इशू सामने आ रहा था, ये इनफील्ड राइफल्स का या फिर मिक्सिंग ऑफ बोन्स का, जिस वजह से कुछ कुछ जो सिपॉइज हैं, कुछ जो मतलब टुकड़ियां थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्श होती जा रही थी, या मतलब दे वर एक्चुअली क्रिएटिंग सर्टेन इश्यूज फॉर द गवर्नमेंट टू हैंडल. So at that time in Barakpur, okay, in Bengal, there was a young sepoy named as Mangal Pandey who went a step further and fired at the sergeant major of his unit. So basically what happened was कि इनको फोर्स किया गया था कि आप ये मतलब जो कार्ट्रिजेस थी जिनके ऊपर ग्रीस था बीफ का या फिर गाय भैंस की जो चर्बी जो ग्रीस की जाती थी वो यूज़ करने के लिए, बट ही डिनाइड. एंड देन ही वॉज फोर्स टू डू सो कि नहीं आपको ये यूज करना ही पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया, मंगल पांडे ने, ही एक्चुअली फायर्ड एट द सर्जेंट मेजर ऑफ हिज यूनिट एंड देन लेटर मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया गया. आफ्टर दैट केम द इंसिडेंट ऑफ मेरठ. ओके, सो मेरठ में क्या हुआ कि कुछ अराउंड 85 मेंस थे. सो दे एक्चुअली रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज एंड देन उनको जो ये सारे 85 मेन थे इनको डिसबैंडन कर दिया गया, मतलब आर्मी से निकाल दिया गया. उसके बाद बिकॉज उनको जेल में भी बंद कर दिया गया था, तो एक काइंड ऑफ रिवोल्ट स्टार्ट हो गया मेरठ से. जो बाकी सब सिपॉइज थे उन्होंने ये पूरा का पूरा जो पूरा रिवोल्ट था उसको स्टार्ट किया. सो बहादुर शाह वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वॉर. एज यू ऑल नो कि कोई एक हेड चाहिए होता है कि जिसका नाम लेके हम लोग एक वॉर स्टार्ट करेंगे. सो बहादुर शाह टू जो थे, जो उस टाइम के मुगल एम्परर थे, उनको एज अ एम्परर ऑफ इंडिया प्रोक्लेम किया गया और उनके अंडर ये वॉर लड़ी गई. ऑल्दो ही वॉज जस्ट उनका सिर्फ नाम यूज किया गया था बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज नॉट एबल टू फाइट अ वॉर. सो सिर्फ उनका नाम यूज किया गया. द एंटायर बंगाल आर्मी सून रोज इन रिवोल्ट एंड सून spread to Awadh, Rohilkhand, the Doab, Bundelkhand and large parts of Bihar and East Punjab. So ये जो पूरा वॉर था, दिस एक्चुअली स्टार्टेड स्प्रेडिंग फ्रॉम बंगाल बिकॉज वो बंगाल में जो मंगल पांडे वाला एक इंसिडेंट हुआ था और जो मेरठ में एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद वो जो रिवोल्ट था वो धीरे धीरे फैलने लगा. कहाँ पे? अवध में, उसके बाद रोहिलखंड में, देन द दोआब वैली and the Bundelkhand area and large parts of बिहार एंड ईस्ट पंजाब, जब ये रिवोल्ट पूरा का पूरा फैलना शुरू हुआ. सो इस तरीके से ये जो पूरा रिवोल्ट था ये स्टार्ट हो गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ डिड इट वेंट फर्दर, और उसके बाद इस जो पूरे रिवोल्ट का रिजल्ट क्या हुआ, और उसके बाद जब ये वॉर ख़त्म हुई उसके बाद इस वॉर के रिजल्ट्स क्या थे. सो प्लीज़ डू वॉच द अनदर पार्ट. ओके, बिकॉज आप आधा छोड़ेंगे तो एग्जाम में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो यू नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग. आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ईच एंड एवरी लीडर ऑल्सो जिसने इसमें इस पूरे वॉर में पार्ट लिया था. Okay, so please do not miss it. I'll see you all in the next video. Till then, please take care and bye-bye.